Well, we're going across straight to the Prime Minister is in fact inaugurating a series of programs, and this is an event in connection with the new museums getting inaugurated today in Jallianwala Bagh. The Prime Minister is just about to unveil the renovated Jallianwala Bagh Memorial, and the revamped memorial in fact was to be inaugurated earlier this year to mark 102 years of the massacre of 1919, but it had to be postponed. But the Prime Minister is in fact doing it today. This is via video conferencing. The Prime Minister's office has, of course, said in a statement already that he will be inaugurating museum galleries developed at the memorial in Amritsar. This event is going to be displaying multiple development initiatives undertaken by the government to upgrade the complex. The Prime Minister himself has tweeted about this earlier, saying that this is going to be a program that's going to be held and it's going to interest the people. The renovated complex, he said, of Jallianwala Bagh Samarak is going to be dedicated to the nation. India will never forget the martyrs of Jallianwala Bagh, quote unquote. We have in fact a series of top leaders, ministers present at the event. We have Cultural Minister G. Kishan Reddy, also the Minister of Housing, Hardeep Singh Puri, Ministers of State also present there at the event. Remember, this is a virtual event. It's a mega tribute to the martyrs of Jallianwala Bagh. There are several key features, in fact, of the renovated complex that the Prime Minister is expected to talk about. There are 4 museum galleries that have been created through adaptive reuse of underutilized buildings. There's also going to be a sound and light show that has been set up to display the events that took place on the 13th of April 1919. Remember, this event is to commemorate 102 years of the Jallianwala Bagh massacre, wherein British forces had fired on a large and peaceful gathering at Jallianwala Bagh in Amritsar, killing over 1,000 people and injuring thousands of them. The renovation also involves the renovation of the Shahidi well that has been repaired and restored with a redefined superstructure. There are several new and modern amenities that have been added.
आप सभी से निवेदन कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। जलियांवाले बाग के शहीदों ਨੂੰ इस ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बहुत ही सत्कार नाल बेनती करांगा मैंबर पार्लीमेंट ते जलियांवाला बाग मैमोरीअल ट्रस्ट के मैंबर श्री श्वेत मलिक जी ਨੂੰ कि वो सारे पदवंते सज्जनों का रस्मी तौर पर स्वागत करन। श्री श्वेत मलिक जी। किसी महान मनुख दा अपने शहर जाना चंगी किस्मत की गल है। किसी महान मनुख नूं नजदीकी तो वेखना किस्मत की गल है। अते जे सानू किसी महान मनुख की मौजूदगी मिलती है अते उसनूं नमस्कार करन दा मौका मिलता है तो यह वड्डी किस्मत की गल है। मैनू अज महान मनुख युग पुरुष गतिशील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं गुरु नगरी श्री अमृतसर साहब विच नमस्कार करन दा महान सुभाग प्राप्त होया। अज मेरी जिंदगी धन हो गई है। अज दे इस शुभ मौके ते सब तो पहला मैं अपने प्रेरणा स्रोतर देश दे सफल गतिशील कर्मयोगी ते विश्व दे सब तो प्रसिद्ध नेता साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करांगा जो अज कुर्बानी दी प्रमुख भूमि जलियांवाला बाग अमृतसर स्थित है। इस धरती उत्ते हजारां शहीदां दी रूहां आराम कर रही ने। उसदे नवीनीकरण कर देश दे लोकां नूं अज मानयोग मोदी जी समर्पित कर रहे ने। इतिहास गवाह है कि किसी काम दा मान उदों ही जागदा रहिंदा है जदों वो अगली पीढ़ी नूं भी सिखांदा है, प्रेरणा देंदा है। किसी राष्ट्र का भविख उदों ही रोशन हुंदा है जदों वो अपने पुराने अनुभवां अते विरासत तो मान पल पल जुड़िया रहिंदा है। फिर भारत कोल मान करन लई एक विशाल दौलत है, एक अमीर इतिहास है, एक चेतन सभ्याचारक विरासत है। इसलिए आजादी के 75वें साल के इस मौके ते अजेकी पीढ़ी नूं यह अमृत की तरह दिता जाएगा। अजिहा अमृत जे सानू हर पल देश ਲਈ जीन देश ਲਈ कुछ करन ਲਈ प्रेरित करेगा। अज तकरीबन 1.5 साल बाद ये बाग अपनी पूरी शानो शौकत नाल खड़ा होया है। अज इस पवित्र स्थान नू लगभग प्रधानमंत्री जी द्वारा दिते गए 20 करोड़ की लागत के नाल बिल्कुल नवा रूप दिता गया है। शहीदी खूह की पूरी तरह मुरम्मत की गई है। नवी गैलरियां गोलियां दे निशान वालियां कंधां नूं भी सुरक्षित रखा गया है। लाइट एंड साउंड नाल एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्री थिएटर भी तैयार किया गया है। जो लोग जलियांवाले बाग दे कतलेआम बारे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकन, उन्हां नूं पता लगे कि वो पिछोकड़ की है कि जिन्हां शहीदां दे कारण ही अज असीं being made there in the virtual event. It's a sound and light show to remember the martyrs of the Jallianwala Bagh massacre of 1919. The Prime Minister is in attendance virtually to inaugurate a series of projects. Remember, the Shahidi well has been repaired and restored with a redefined superstructure. Also, Jallianwala Bagh now will have 4 museum galleries that have been created through adaptive reuse of underutilized buildings. The galleries remember display the historical value of events that took place in Punjab during that period, with a fusion of audio-visual technology, including projection mapping and 3D representation, as well as art and sculptural installations. A sound and light show has been set up as well to display the events that took place on the 13th of April 1919. This was the day when the British forces had fired on a large and peaceful gathering of protesters, killing over 1,000 people and injuring hundreds of them. Several new and modern amenities have been added, including redefined paths of movement with appropriate signages, elimination of strategic spots, landscaping and hardscaping with native plantation, installation of audio notes through the garden. प्रधानमंत्री जी, गवर्नर साहब, पतवंते सज्जनों, मुख्यमंत्री साहिबान,
जो अज इत्थे विराजमान ने, मैंबर पार्लीमेंट, MLA साहिबान, और सब तो ज़्यादा मेरे शहीद परिवारां दे जिहड़े अज उन्हां दी नवीं पीढ़ी है, एक पीढ़ी अगे आ गई जिहड़े अज इत्थे विराजमान ने, जिसते अज बहुत खुशी का दिन है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐना सोच के 102 साल हो गए ने उस वाक़यात को, और उस 102 साल दे विच तो बाद इसका रेनोवेशन जो हो रहा है, नवी एक रूपरेखा जो दी गई है इस जलियांवाला बाग नूं, ओहदा अज देश नूं समर्पित कर रहे हैं। ये जिहड़ा वाक़यात होया मेरा ख्याल सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि 102 साल बेशक हो गए, पर अज ताईं असी नहीं जानते कि किन्ने उत्थे शहीद होए ने लोग। असी विसाखी, खूनी विसाखी जिहड़ी कहंदे ने 1919 दी देख लो, 102 साल हो गए, लेकिन साडे जिहड़े रिकॉर्ड दे विच है 488 बंदियां दी उत्थे शहादत हुई, लेकिन जिहड़े पिंडां 'च गए, पिंडां 'च मरे, पिंडां जख्मां तो मरे, कुछ नहीं पता। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 6 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਸਲਾ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 17 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ 1919 ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਲ ਧਰਤੀ ਜੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਛੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਕਲੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ प्रधानमंत्री जी, मेरी आपको एक बेनती है, मैं आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ਨੂੰ भी लिखी है कि वो जी पिस्टल सी ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ और वो जी उन्होंने डायरी सी, ਉਹਨੂੰ अगर UK की सरकार ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ वापस ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਲਏ ਔਰ ਦੇਖ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਜਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। जलियांवाला बाग, इसी प्रांगण में ही परतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत के सफर की अनेकों गाथाओं को कला की विभिन्न विधियों
आधुनिक व पारंपरिक कलाकारों की कला का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करती गैलरीज और म्यूजियम के साथ साथ इस शहीदी स्मारक के नवीन, सुरक्षित, संरक्षित स्वरूप के लोकार्पण के लिए सादर अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा इस शुभ कार्य को अंजाम दें। भारत भूमि की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत हमारी अमूल्य धरोहर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों और प्रतीकों को सहेजने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय धरोहरों तथा ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण तथा नवीकरण किया है ताकि हमारी नई और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। इसी विजन के साथ और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक को एक नई रूपरेखा में पुनः स्थापित किया गया है। जलियांवाला बाग, जहां अंग्रेज हुकूमत ने शताब्दी पहले क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का नवीकृत परिसर देश के शहीदों के बलिदान से जुड़े इस स्थल को सम्मान और संवेदना की अनुभूति के साथ पुनः स्थापित करता है। शहीदों को अर्पित यह स्मारक उन सभी देशवासियों के बलिदान की याद ताजा करता है जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस ऐतिहासिक स्मारक की अनुभूति की शुरुआत होती है प्रवेश द्वार पर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा से। यहां से आगे बढ़ते हुए हेरिटेज एली में आप अनुभव करेंगे 1919 की बैसाखी के उत्सव में शामिल हुए लोगों के हर्षोल्लास का। प्रांगण में स्थापित जल कुंड शहीदों को अर्पित श्रद्धांजलि को निरंतर अभिव्यक्त करता है। इसके आगे पहली गैलरी पंजाब के समृद्ध इतिहास और अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा देश विदेश में हुए आंदोलनों का वर्णन करती है। दूसरी गैलरी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा पंजाब का शोषण, रॉलेट एक्ट के निष्ठुर काले कानून का विरोध और हत्याकांड के पूर्व हुए घटना चक्र का उल्लेख करती है। साथ ही यह गैलरी उस निर्मम नरसंहार की एक जीवंत अनुभूति भी कराती है। गोलियों से बचने की आखिरी उम्मीद यह शहीदी कुआं उन मासूमों की असहाय चीखों को आज भी अपनी गहराइयों में समेटे हुए है। शहीदी के इस स्मरण के बाद तीसरी गैलरी उस निर्दयी हत्याकांड के बाद समस्त देशवासियों की एकजुटता को अभिव्यक्त करती है। बेगुनाहों के जिस्मों को भेद कर निकली वो गोलियां आज भी बाग की दीवारों में निशान के रूप में अंकित हैं। चौथी गैलरी जनरल डायर के इस निर्मम कत्लेआम से प्रभावित हुए उधम सिंह व भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों को समर्पित है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई आग प्रज्वलित कर दी थी। शहीदी स्मारक, मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित साउंड और लाइट शो जैसे समावेश यहां हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। गरिमा और पवित्रता के प्रतीक इस बाग का नवीकृत परिसर सभी विजिटर्स को देश प्रेम, संवेदना
एवं बलिदान की भावनाओं के साथ जोड़ेगा और प्रेरणा देगा। और प्रेरणा देगा।